और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंच चुकी हैं और कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंच चुकी हैं और कार्यक्रम स्थल में शामिल हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसके अंचल में विश्व है, इसकी बाहू में जम्बूद्वीप, इसके मस्तक पे ज्ञान भोर, इसका अंतरराष्ट्र कमल दल। ये योग भूमि, ये रंग धरा, ये विश्व सूत्र गुरुओं का छोर। ये है साचीवाद भारतीय विश्वविद्यालय की श्रवण ध्वजा। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। I would like to call upon Professor Nirja Gupta, Vice Chancellor, Sanchi University of Buddhist Indic Studies, for the introductory address. Sadar Vandan, the chief guest of the day, the most honorable Adaniya Mahamahim Rashtrapati Ji, the graceful presence, honorable Governor Sir, our very visionary father figure, Adaniya Chief Minister Sir, extremely Pujaniya Manch and Garimamai Sabhagrah, sabko pranam, and an humble welcome to the heart of India, the Sangam Kshetra of Mahakal and Sanchi, the state of Madhya Pradesh. India Foundation, Sanchi University of Buddhist Indic Studies, and Ministry of Culture, State of Madhya Pradesh, jointly organized the 7th edition of Dharma Dhamma conference to set the discourse on the theme Eastern Humanism in the New Era. Sanchi University is mandated to nurture the sparks of spiritual legacy and knowledge traditions of Buddhist and Indic backgrounds. Presently, under the aegis of Madhya Pradesh government and with the most congenial and personal efforts of our Honorable Chief Minister Sir, we go ahead with the new hopes. This has only given us the courage to set up the most dignified stage today for this conference. I personally and my university especially is humbled and thankful for the most graceful presence of the dignitaries from India and across the world. It's believed that the absence of war is not peace, and military war is not the only way of war. Our mind and soul today is at war, and it is said, Shrutishch bhinna, smrityashch bhinna, mahardisha matiyashch bhinna. With all these conflicting ideas, the peace is attained when there is a symphony and harmony. Today, if we don't understand that we are interdependent, paraspare ashrayi, sanghatvan martya loke parasparam ashrita, then Dhamma said we would perish soon. Dhamma also says that life is lived by us but not for us. The world wants peace, but it isn't ready to pay the price of peace. It's not lacuna of prosperity, but the morals and ethics today. The youth is looking towards us. The society needs more from us. The era of biased narratives and destructive toolkits is all over prevalent. It's our duty with our academic freedom. और आज जब हम धम्मा सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठा हैं, तो मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है
कि बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया, उसने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को कर रहा है। मैं राम माधव जी और इंडिया फाउंडेशन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को इस धमधम्मा सम्मेलन के लिए चुना। करने का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और आज जब हम धमधम्मा सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठा हैं, तो मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया, उसने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को कर रहा है। मैं राम माधव जी और इंडिया फाउंडेशन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को इस धमधम्मा सम्मेलन के लिए चुना। पूरब का मानवतावाद, अभी गोविंद गिरी जी बोल रहे थे। देखिए, हजारों वर्ष पुराना भारत का इतिहास है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत। और अगर मैं मूल चिंतन क्या है भारत का, यह बात कहूं तो एक ही पंक्ति में अगर कहूं तो एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान है, अनस्यूत है। एक ही चेतना वो सब में है, मनुष्य मात्र में है। और इसलिए भारत में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीताराम है, वो ही है सब में। या कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लकी ना जाए। इसको और अगर बढ़ाएं तो स्वामी जी जिस श्लोक का भी उल्लेख कर रहे थे, इसलिए भारत में कहा गया अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये छोटे सोच वालों का, छोटे दिल वालों का सोच है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी धरती ही एक परिवार है, सारी वसुधा ही एक परिवार है। इसलिए हमारे यहां कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, कोई भेद नहीं। इसलिए शायद कहा गया कि जियो और जीने दो। और अगर आगे बढ़कर कहूं तो मैं भारत के गांव गांव में, केवल विद्वानों की सभाओं में नहीं, गांव गांव में आज भी हर धार्मिक आयोजन में बच्चा बच्चा इस मंत्र का उच्चारण करता है, उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। बच्चा बच्चा भारत का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये भारत का बच्चा बच्चा गाता है। ये वही सोच है, एक ही चेतना। और सचमुच में इसी भाव के कारण हमने पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में उसी एक आत्मा को देखा। शायद इसलिए जो दशावतार भारत में माने गए हैं, उनमें से जो 4 अवतार 12 है, मत्स्य कूर्म 3 और एक चौथा नरसिंह अवतार, ये आधा मनुष्य का और आधा पशु का हुआ। एक आत्मभाव से देखने का भाव है। शायद इसलिए हमने नदियों की भी पूजा की, मां माना। गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, पवित्र माताएं हैं। इसलिए हमने पेड़ों की पूजा की। अभी भगवान बुद्ध की प्रतिमा महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की तो पीपल के पत्ते पे। अब आप देखिए, बट का वृक्ष, पीपल का पेड़, इसमें भी वही चेतना है। ये भारत के दर्शन में आपको हर जगह मिलेगी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, महामहिम को सुनेंगे। सारी धरती एक परिवार है, केवल धरती नहीं, धरती पर रहने वाले
बाकी प्राणियों के लिए भी ये धरती है। अब आजकल सोचा जाने लगा है, मध्य प्रदेश में अभी हम लोग चीता विलुप्त हो गए थे तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए, गाय को माता मानने का भाव। तो ये सोच में और चिंतन में। और अगर हम धम्मा के बारे में बात करें तो देखिए, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि धर्म और धम्म का पहला सिद्धांत सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना। एक ही बात है, एक ही चेतना सब में है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। दूसरी चीज अगर कहें तो ज्ञान और बोध का अर्थ, ज्ञान और बोध पैदा करना, जिसका अर्थ है चीजों की नश्वरता और अंतर संबंधों को पहचानना। और तीसरी अगर करें तो आंतरिक शांति और निर्विकार भाव विकसित करना। यहां विद्वानों की सभा है, अलग अलग बिंदुओं पर आप गंभीर चिंतन और मंथन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगा। क्योंकि इस देश ने, इस धरती ने, भगवान बुद्ध ने भी जो कहा वो यही था, युद्ध नहीं, शांति, घृणा नहीं, प्रेम, संघर्ष नहीं, समन्वय, शत्रुता नहीं, मित्रता। और मुझे लगता है यही वो मार्ग है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसके लिए धम्म और धर्म सम्मेलन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार सभी अतिथियों का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable CM, for your endearing speech. Now we will have the book launch of the Panorama of Indian Philosophers and Thinkers Encyclopedia Collection, authored by Professor S.R. Bhatt and Professor Nirja Gupta. On the occasion of glorious 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav, this book has been published. It is comprised of 3 volumes, Spiritual Legacy, Premier, and Medieval and Modern. In this regard, many philosophers and scholars of India have submitted their entries into this compilation, and this is the first of this kind in India. May I now invite the Honorable Governor to deliver his address. सभी को नमस्कार। 7वें इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस में पधारे भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी, भूटान के गृह एवं संस्कृति मंत्री श्री उगेंदर जी, श्रीलंका के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मंत्री विदुरा विक्रम नायका जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी, मंचासीन महानुभाव, उपस्थित संतगण, भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं अंतर की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं। राजा भोज के ऐतिहासिक नगर भोपाल में